नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखना है इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के रंग मंदिर में 10 दिवसीय कन्नड़ स्वयं शिक्षा परियोजना कार्यशील के संबंध में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज बीदर के शिवाजी सर्कल पर शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। केंद्रीय मंत्री भगवंत हुबा और जेडीएस नेता बंडप्पा खाशमपुर के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। पटना में तारामंडल में 10 दिवसीय सिल्क इंडिया प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मॉडल्स ने रैंप वॉक के साथ किया सिल्क साड़ियों का प्रदर्शन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को मिला 12,000 नए स्मार्ट क्लासरूम का तोहफा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया उद्घाटन। यूपी में विधानसभा चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश में आज रात से हटाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के घटते मामलों को लेकर लिया गया यह निर्णय। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक साहित्य अकादमी बेंगलुरु, कर्नाटक गरीब प्रवेश अभिवृद्धि प्राधिकार बेंगलुरु के सहयोग से मातृभूमि सेवा प्रतिष्ठान बीदर की ओर से बीदर के रंग मंदिर में 10 दिवसीय कन्नड़ स्वयं शिक्षक परियोजना का कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में आज बीदर के रंग मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका नेतृत्व कर्नाटक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर बी वसंत कुमार ने किया। इस अवसर पर सहायक निर्देशक कन्नड़ और संस्कृति इलाके बीदर श्री सिद्धराम सिंधे और मातृभूमि सेवा प्रतिष्ठान बीदर के संस्थापक कार्यदर्शी गुरुनाथ राजगीर भी उपस्थित थे। इस अवसर पर इन लोगों ने 10 दिवसीय कन्नड़ स्वयं शिक्षा परियोजना कार्यशील के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। ಬೀದರ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲೂಕುಗಳ 50 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಯಂ ಶಿಕ್ಷಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಸಂಬಂಧ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಿನ್ನೆ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಮುಂದೆ ಅದು 27ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಆನಂತರ ಅವರು ಅವರವರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ, ರಂಗಗೀತೆಗಳು, ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಕಿರುನಾಟಕಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ। ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಅದರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು। 27ನೇ ತಾರೀಕು ಅದರ ಸಮಾರೋಪ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಅದು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ಈ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಶಂಭಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಭಟ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು, ನಟರಾಜ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇದೇ ಬೀದರ್ ಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ದಾಡಗೆ ಅವರು, ಶಿವಲಿಂಗ ಹೇಡೆ ಅವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಂಡಾಲೆ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಶಂಕ ಬಾತಂಬ್ರಾ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ। 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾದಂಥ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಅದು ಗಡಿ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡದ ಹೃದಯ ಭಾಗ। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಹೃದಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿತಿರಬೇಕು। ಆ ಹರಿಯುವ ಗುಣ ಇರೋದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ। ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಅದನ್ನೇ ಬಸವಣ್ಣವರು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೇ ನೆಲದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಇದೇ ಬೀದರ್ ಬಿದ್ರಿ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ
ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೆಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೃತ್ಕಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯದು. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಸರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती है। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज को चुनिंदा महान योद्धाओं में गिना जाता है। बीदर के शिवाजी सर्कल पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के नेतृत्व में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, जेडीएस के वरिष्ठ नेता बंडप्पा खाशमपुर और सूर्यकांत नागमरपल्ली के अलावा जिला अधिकारी गोविंदा रेड्डी, एसपी डेका किशोर बाबू, बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमरपल्ली, बीजेपी मुखंड ईश्वर सिंह ठाकुर, जेडीएस जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर, सीएस जोरान नसीम, शिव शरणप्पा वाली के अलावा मराठा समाज के सभी लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर शिवाजी महाराज के चित्र पर फूल माला डाली गई और पूजा की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, जेडीएस के वरिष्ठ नेता बंडप्पा खाशमपुर और सूर्यकांत नागमरपल्ली ने शिवाजी की मूर्ति पर फूल माला अर्पण किया। साथ ही झंडा भी लहराया गया। इस अवसर पर मराठा समाज की ओर से सभी उपस्थित अतिथियों को फूल माला पहनाई गई। इस अवसर पर बात करते हुए भगवंत खुबा और बंडप्पा खाशमपुर और सूर्यकांत नागमरपल्ली ने शिवाजी महाराज की जयंती पर मराठा समाज के सभी लोगों को बधाई दी और शिवाजी महाराज के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। 392ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಘನವೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ನನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶರಣು ಸಲ್ಗಾರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ MG ಮುಳೇವರ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವಂಥ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಛತ್ರಪತಿ ಮಹಾರಾಜವರ ಆದರ್ಶಗಳು, ಆಡಳಿತದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಆ ಸ್ಮಾರಕದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳು ಸಹಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ತಾಯಿ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ತನ್ನ ಖಡ್ಗ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೇನಾನಿಪದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಒಂದು ಹೊಂದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿರೋರು, ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೊಸ ರೂಪರೇಷನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ
ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋರಿಗೂ ಇರಬೇಕಂತ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಭಗವಂತ ಖೋಬಾಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ತ್ರಿಪುರಾಂತರದಲ್ಲಿ 8 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭವ್ಯ ಪುತ್ಥಳಿ ಹಾಗೂ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಮಾಜನ ಬೆಳೆಸಬೇಕನ್ನೋದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನನಗಂತಂಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಭವ್ಯ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಮಾರಕ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವ್ಯ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. राजधानी के प्लानेटोरियम हॉल में 10 दिवसीय सिल्क इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही साथ प्रदर्शनी में मॉडल्स द्वारा रैंप वॉक सिल्क साड़ियों का प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जब मॉडल सिल्क की साड़ियां पहनकर दर्शकों के सामने आई तो उनकी खूबसूरती के साथ सिल्क की चमक भी चारों ओर फैल गई। कार्यक्रम के दौरान मॉडल्स ने भारत के विभिन्न राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए साड़ियों का बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन किया। सिल्क इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रबंध निदेशक श्री मानस आचार्य ने बताया कि इस आयोजन का मकसद बुनकरों की कला को लोगों के सामने लाना था। इस कार्यक्रम में प्रोफेशनल मॉडल्स ने देश भर के बुनकरों द्वारा तैयार वस्त्र पहनकर उनकी कला की नुमाइश की। एक से बढ़कर एक 15 मॉडल्स ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सिल्क उत्पादों को प्रदर्शित किया। कांजीवरम, बनारस की बनारसी, भागलपुर की कॉटन सिल्क, उड़ीसा की लिलम सिल्क सहित अन्य राज्यों की सिल्क साड़ियों को पहनकर जैसे ही मॉडल सामने आई तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि मॉडल्स ने जिस प्रदेश की सिल्क साड़ियों की नुमाइश की वो उस प्रदेश के पारंपरिक वेशभूषा में थी, जिस कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना रहा था। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी चुनाव अंतिम प्रचार के दौरान सादिक के समर्थन में सभा एवं जनसंपर्क में उमड़ा जन सैलाब। सदर विधानसभा AIMIM के प्रत्याशी सादिक अली के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए सांसद तथा बैरिस्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा तथा सपा पर जमकर बरसे। क्राफ्ट मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ तथा अखिलेश यादव राम और श्याम की जोड़ी है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हैं और यह भी कहने से नहीं चूकते कि माफियाओं पर उन्होंने बुलडोजर चलाया है। चुनाव है इसलिए बुलडोजर शांत है, लेकिन चुनाव के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यदि उन्होंने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है तो हम पर गोली चलाने वाले लोगों के मकान अभी तक क्यों हैं? आखिर वे किन के दामाद हैं? इस सरकार के मंत्री उनके पास जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। सभी को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही जाति तथा धर्म पर राजनीति करते हैं। हमारा मकसद समाज के वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाना है। केपी न्यूज के लिए हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सरकारी स्कूलों में 12,000 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। प्रदेश के 240 सरकारी स्कूल 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम से लैस हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में सही मायने में शिक्षा क्रांति हो रही है। प्रदेश में शानदार स्कूल और क्लासरूम बन रहे हैं। देश के प्राइवेट स्कूल भी इतने स्मार्ट नहीं हैं जितने कि दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। इस साल 3,70,000 बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो गया है। रविवार को तीसरे चरण का मतदान होना है। इस बीच यूपी सरकार ने फैसला किया है कि आज रात से नाइट कर्फ्यू को हटा लिया जाएगा। ऐसा निर्णय कोरोना के घटते मामलों को लेकर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन जब प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो गए हैं तो इसे हटाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने राज्य के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में पत्र के माध्यम से निर्देश भी दिया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। पंजाब में चुनाव अब आखिरी चरण में है। ऐसे में कैंडिडेट किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें अभी कुछ भी वादा करना हो, सब मान लेते हैं। कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने ऐसा ही वादा किया है। मानसा से कांग्रेस उम्मीदवार शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला ने एक गांव की जनता से दिलचस्प वादा किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मनसा विधानसभा क्षेत्र से खीवा कलां की ग्राम पंचायत को शुभदीप सिंह सिद्धू ने 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर गांव वालों की मांग को पूरा करने का वादा किया है। इतना ही नहीं, शुभदीप सिंह ने स्टैंप पेपर पर यह भी लिखा है कि अगर वादा पूरा नहीं किया तो जनता उन पर 420 का केस लगाकर जेल भिजवा सकती है। शुभदीप सिंह ने गांव वालों के लिए विकास की गारंटी वाले 11 मांगे पूरी करने के लिए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया है। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला ने स्टैंप पेपर पर लिख कर दिया है कि अगर वो इन मांगों को पूरा नहीं करता तो उस पर 420 का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाए। बिहार के समस्तीपुर में जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता की निर्मम हत्या पर सबूत छिपाने के लिए उसके शव को जलाकर दफनाने का मामला सामने आया है। घटना मुसीघरारी थाना क्षेत्र के हुड़िया गांव की है। पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव की बूढ़ी गंडक नदी के पास सुनसान जगह पर बने एक मकान के अंदर से जेडीयू कार्यकर्ता का शव जला हुआ अवशेष बरामद किया है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय जेडीयू कार्यकर्ता मोहम्मद खलील आलम रिजवी के रूप में हुई है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि मोहम्मद खलील आलम रिजवी बीते 16 फरवरी की सुबह तकरीबन 11 बजे घर से निकला था। इसके बाद उसके मोबाइल से फोन कर पहले 5 लाख रुपया मांगा गया। फिर कुछ देर बाद उसके पिता के मोबाइल पर फोन आया, जिसमें 3,75,000 रुपए की डिमांड की गई। परिजनों के द्वारा फोन करने वाले शख्स से पूछा कि पैसा कहां देना है, तो उसने इसे अपने अकाउंट में भेजने की बात कही। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए मुसरीघरारी थाना में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर शुक्रवार को दिल्ली में मिले। इस मुलाकात की पुष्टि नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में खुद की। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत से आज का नहीं बल्कि पुराना रिश्ता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर ने इस मुलाकात के बारे में कहा है कि यह शिष्टाचार के तहत मुलाकात थी, क्योंकि जब नीतीश कुमार को पिछले महीने कोरोना हुआ था तब उनसे हालचाल लेने के लिए बातचीत हुई थी। बस उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत हुई। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस मुलाकात के लिए नीतीश कुमार ने इच्छा प्रकट की। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे इस मुलाकात को सार्वजनिक किया है, इससे साफ है कि वो फिलहाल भाजपा की तरफ से हर मुद्दे पर आक्रामक रवैये के कारण एक संदेश भी भेजना चाहते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के रंग मंदिर में 10 दिवसीय कन्नड़ स्वयं शिक्षा परियोजना कार्यशील के संबंध में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज बीदर के शिवाजी सर्कल पर शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। केंद्रीय मंत्री भगवंत हुबा और जेडीएस नेता बंडप्पा खाशमपुर के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। पटना में तारामंडल में 10 दिवसीय सिल्क इंडिया प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मॉडल्स ने रैंप वॉक के साथ किया सिल्क साड़ियों का प्रदर्शन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को मिला 12,000 नए स्मार्ट क्लासरूम का तोहफा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया उद्घाटन। यूपी में विधानसभा चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश में आज रात से हटाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के घटते मामलों को लेकर लिया गया यह निर्णय। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।